Am I audible? Yes, sir. Good morning, sir. Good morning. Morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. So we have gone through the decision tree problem in the last lecture, and also we tried to construct a decision tree. And I asked you to go through CART and IDT algorithm. But there exist some problems with respect to decision tree, and they are. I hope you can see my screen now. Is my screen visible to you? No, sir, it's not. No, sir. So it's coming up, I guess, sir. Is it now? Yes, sir. Yes, Now sir. it's visible. Yes, sir. I think it is visible now. So you have overfitting and pre-pruning. So what do you understand by the term overfit? When we go for pushing the data to a tree in a particular level, okay, so this means that we try to create more and more branches, and this will actually induce some noises, or you can say some anomalies, okay, and that particular problem is known as overfitting. So this is a very serious factor. I'll send after this class. Yes, class. Yeah, I have almost complete. Anthem. Okay, एंथम ही लिखना है। हाँ हाँ मैं अपना इसमें जो लास्ट टाइम ईमेल का रेगुलर एग्जाम हाँ उसके लिए और एक मेल है स्पेशल एग्जाम मतलब एक ही है ना सर, एक ही पेपर करना है वो स्पेशल एग्जाम के लिए। हाँ हाँ तो फिर स्पेशल की जगह पे एन टर्म लिखना है। हाँ वो देखो ना आपके दोनों एक मैं आपको दिखाई देता हूँ। नहीं क्लास लेने के बाद sorry hello uh, so what I was talking about the overfitting problem, where you try to create or try to push more number of data points to a particular level, and thereby creating many branches. Okay, so this will reflect some anomalies, and this is because of the noises. Okay, and this problem we have to deal with in case of decision tree. And for that, we do have some approaches. We do have some approaches to deal with this overfitting problem. There are two of them.
actually that is known as pruning. Okay, I think in the AI class also I told you about the pruning. हमें जो unnecessary branches हमारा create हो रहा है, हम क्या करते हैं, उसको हटाते हैं. Okay, so उसके लिए आपके पास दो approaches हैं. We have two approaches to avoid this overfitting problem. One is free and other is post. Okay, so let's see about the pre-pruning. So halt tree construction early. Do not split a node if this would result in the goodness measure falling below a threshold. So यहाँ पे क्या हो रहा है प्री प्रूनिंग में, हम आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे हैं. मतलब आपने देखा होगा जो हमने पढ़ा था कार्ट और आईडीटी में, we go for some attribute selection measures like entropy, okay, Gini index, okay, and based on their values we try to split the tree. Okay, try to split that node actually, so that we can create a child node and thereby we are creating some branches out of it. अब हमें अगर हमने कुछ एक थ्रेशोल्ड वैल्यू ले लिया कि सपोज मैंने वैल्यू ले लिया था, कल क्या वैल्यू हमने लिया था 2.7, ठीक है, हमने देखा सपोज 2.7 से ज्यादा हो रहा है तो हम उसको क्या कर रहे हैं, स्प्लिट कर रहे हैं. और 2.7 सपोज 2.7 से कम हो रहा है तो वी आर नॉट स्प्लिटिंग इट, वी आर we'll leave it. Okay, so ये जो 2.7 मैं कंसीडर कर रहा हूँ, this can be regarded as a threshold. इसका मतलब ये है कि उस नोड का जो हमने एट्रीब्यूट मेजर वैल्यू निकाला, आइदर आप एंट्रोपी कैलकुलेट कर रहे हो या गिनी इंडेक्स ले रहे हो, ठीक है, इफ दैट वैल्यू रीचेस टू दैट थ्रेशोल्ड वैल्यू देन वी आर नॉट गोइंग टू स्प्लिटिंग इट. ओके, या तो उससे ज्यादा हो रहा है तो हम स्प्लिट कर रहे हैं, ठीक है, यस बराबर, और इससे कम हो रहा है तो हम स्प्लिट नहीं कर रहे. सपोज आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल. तो हम क्या कर रहे हैं, स्प्लिट होने ही नहीं दे रहे, पहले ही उसको रोक रहे हैं, ठीक है. So that is known as pre-pruning. Okay, I'm repeating it again. Halt means रोक देना है. Halt tree construction early. Do not split a node if this would result in a goodness measure falling below a threshold. Okay, जैसे मैंने अभी यहाँ पे एग्जांपल दिया 2.7. लास्ट क्लास में हमने जो देखा था उसका वैल्यू आई थिंक 0.7 समथिंग था. तो जो भी वैल्यू आप कंसीडर कर रहे हो, ठीक है, उस थ्रेशोल्ड के बेस पे आप क्या करोगे, होल्ड करोगे. यू आर गोइंग टू होल्ड द ट्री कंस्ट्रक्शन ऑन द बेसिस ऑफ दैट थ्रेशोल्ड. बट हाउ टू चूज दैट थ्रेशोल्ड वैल्यू? हेलो, am I audible or not? Yes, sir, you are audible. Yes, sir. Sorry. Okay, so yeah, how to choose that threshold value that again itself is a challenge, right? So क्योंकि आप अनुमानिक तरफ से क्या कर सकते हो कि हाँ मैं 2.7 मान के चल रहा हूँ, but कैसे? Is there exist some technique that based on which you can consider that this is the threshold value? So this is a very difficult thing. Okay, yeah, it is not impossible. You can go through several some techniques available, of course, based on which you can determine that, but that is a part of higher research study. Okay, so one problem we can face with the help, in case of pre-pruning is it's very difficult to choose that particular threshold value. So ये हो गया आपका प्री प्रूनिंग. ओके, प्री प्रूनिंग में पहले ही आप उसको क्या कर रहे हो, प्रून कर रहे हो, मतलब वहां पे नहीं जा रहे हो, वहां उसको स्प्लिट नहीं कर रहे हो. याद रखना, नोड को स्प्लिट करना मतलब क्या है, यू आर क्रिएटिंग सम branches. If you stop splitting it, then this means what? You are halting the tree construction, right? So that will also avoid the overfitting problem, right? Now, similarly we have post pruning. हमें नाम से ही पता लग रहा है कि ये प्री है और ये पोस्ट है. यहाँ पे क्या होगा, आप ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट कर चुके होंगे और उसके बाद आप जो अननेसेसरी लग रहा है उसको हटा रहे हो. यू आर गोइंग टू रिमूव ब्रांचेस फ्रॉम ए fully grown tree. Okay, fully grown means you have already constructed the tree, right? आपने अगर उस लास्ट वाला एग्जांपल भी जो मैंने दिया था, एक सेकंड, लेट मी रिकॉल यू. हाँ, ये एग्जांपल मैंने दिया था लास्ट, ठीक है. इससे पहले एक एग्जांपल दिया था, वो तो मैंने दिखा दिया था, इट्स वेरी सिंपल. और उसके बाद मैंने उसी एग्जांपल को कुछ टेबल्स में वैल्यू दे दिया था और आपको कहा था कि ये इसका डिसीजन ट्री बनाओ, राइट? सॉरी. तो
आपने देखा कि ये जो नोड्स दिख रहा है आपको, ये एज क्या है, रूट नोड है, उसके बाद 30, 31, 40, ये सारे वैल्यूज हम खुद कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बेसिस पे इस नोड को स्प्लिट कर रहे हैं। यहाँ पे नहीं ईएस आ गया, मतलब क्या है, व्हाट इज द ईएस हियर? कैन समबडी टेल मी व्हाट इज ईएस हियर? The class मैं level. ये मान के चल रहा हूँ, वेरी गुड, ओके, दीज आर द क्लास लेवल्स। सो ये लीफ नोड्स हमेशा याद रखना, इफ दिस इज अ लीफ नोड, ऑफ कोर्स वी हैव गॉट और वी हैव एक्चुअली रीच्ड द क्लास लेवल, ओके, जो हमें करना है, ठीक है। और तब तक ये स्प्लिट होगा जब तक हमने लीफ नोड अचीव नहीं किया, मतलब क्लास लेवल रीच नहीं किया, तब तक हमें इसको स्प्लिट करना है, ठीक है। तो ये मैं मान के चल रहा हूँ, ये आप सभी लोगों ने बना लिया था, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, ये नोड को इस पर्टिकुलर ये जो कंडीशन के ऊपर इस नोड को स्प्लिट किया, तो स्प्लिट किया तो क्या हो गया, ये दो ब्रांच क्रिएट हो गया। ये कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे अननेसेसरी ब्रांचेस क्रिएट हो, ये जो प्रॉब्लम दिखा रहा है, दिस इज वेरी सिंपल प्रॉब्लम, बिलीव मी। जब आप बहुत बड़ा डाटा सेट के साथ काम करोगे, व्हेन यू गो फॉर वर्किंग द वेरी बिग डाटा सेट, देन यू विल सी, तब आप डिसीजन ट्री कंस्ट्रक्ट करोगे, आइदर आप कंस्ट्रक्ट किया सपोज कार्ड, ठीक है, 4.5, 4.5, तो ये सब में आप देखोगे कि बहुत बड़ा बड़ा ट्री कंस्ट्रक्ट होता है, जिसमें हमें क्या है, हमारे पास कुछ अननेसेसरी ब्रांचेस भी क्रिएट हो जाते हैं। So we always try to reduce the number of branches. We try to cut off them. So that problem is known as pruning problem, and pruning can be done two ways: either the pre-pruning process or the post-pruning. तो post-pruning हमेशा fully grown tree के लिए होता है, ठीक है। So use a set of data different from the training data to decide which is the best prune tree. आप क्या मुझे कोई ये अगर ये लाइन पढ़ के क्या समझ में आ रहा है, कैन यू टेल मी दैट आई हैव सेड, तो फॉर पोस्ट प्रूनिंग मतलब क्या है, बाद में करेंगे प्रूनिंग, ठीक है। फुली ग्राउंड ट्री मिल गया, उसके बाद मैं प्रूनिंग करूंगा, ठीक है। तो उसमें मैंने क्या बताया आपको, यूज ए सेट ऑफ डेटा डिफरेंट फ्रॉम द ट्रेनिंग डाटा टू डिसाइड व्हिच इज द बेस्ट प्रून ट्री। इसका मतलब क्या है, कैन एनीबॉडी टेल मी, एक्सप्लेन इट। थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे तो इसका आंसर मिल जाएगा आपको। For this, you need to recall the training and testing data sets. Please try. Can you guess something? हम क्या बोल रहे हैं? हाँ Sir, बोलो, क्या data. बोलना चाहते हैं? Sir, data that is not given to the machine, not fed to the machine. Okay. So there should be a separate data set that is used for while making the model and use different data set when testing the model. See, we are not using different data set. Sorry, we are using the same data set. Okay, we are dividing into two parts. See, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। हम एक डेटा सेट में काम कर रहे हैं, ठीक है। उस डेटा सेट को मैं डिवाइड किया हूँ ट्रेनिंग और टेस्टिंग में, टेस्ट डेटा सेट एंड ट्रेनिंग डेटा सेट। मैं आपको पहले ही बताया था कैसे हम ये करते हैं। ट्रेनिंग के साइड में हम ज़्यादा रेशियो रखते हैं, ज़्यादा वैल्यूज रखते हैं, ज़्यादा नंबर ऑफ पॉइंट्स रखते हैं, और टेस्टिंग में कम। अब मैं ट्रेनिंग के जरिए जो 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 पार्ट मैंने कंसिडर किया, मैं क्या बोल सकता हूँ, आई कैन से दैट द सबसेट ऑफ द ओरिजिनल डाटा सेट। अब ऐसा सबसेट तो आप जितना मन चाहे उतना बना सकते हो, यू कैन क्रिएट एज मेनी एज सबसेट यू वांट। एम आई राइट और रॉन्ग? आपको मैंने सेट दे दिया 1 से 10, सपोज 1 2 अप टू 10। तो यहाँ से इस 1 2 अप टू 10, और आपको मैंने कहा कि इसको डिवाइड करो 7:3, ताकि मुझे 7 वाला पार्ट में जो सबसेट्स मिले, एक से ज्यादा होना चाहिए। ऑफ कोर्स यू कैन क्रिएट मोर देन वन सबसेट्स आउट ऑफ। तो यही हम बोल रहे हैं कि मेरे पास जो डाटा सेट था,
उसको मैंने ट्रेनिंग डेटा सेट और टेस्टिंग डेटा सेट इसमें डिवाइड किया ऑन द सेम डेटा सेट। अब ऐसा नहीं ना कि मुझे एक ही सबसेट ट्रेनिंग डेटा के लिए मिलेगा, right? We may have more than one subsets for the training purpose that we can term it as the training data set. जब मैंने सपोज ट्रेनिंग डाटा सेट 1 के थ्रू जो मैंने बनाया था एक ट्री मिल गया, एक डिसीजन में ट्री मिल गया, आप क्या करोगे? आप यही चीज to construct the decision tree, you will select a different training data set, right? तो ये क्या है? ये दिस प्रोसेस एक्चुअली इज काइंड ऑफ टाइम कंज्यूमिंग, ऑफ कोर्स इज कॉम्प्लेक्सिटी इज मींस यू नो बी इंक्रीज ऑफ नो डाउट, बट जब आप कंपेयरिंग करोगे देन आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे किस पोर्शन पे आपको प्रून करना है, कट ऑफ करना। प्रून करना मतलब कुछ नहीं, वो सारे जो अननेसेसरी और इरिलेवेंट ब्रांचेस है उसको हटाना है। यही चीज हम पोस्ट प्रूनिंग में करते हैं, पहले बना लेते हैं, उसके बाद चेक करते हैं और जो अननेसेसरी है उसको हटा देते हैं। ठीक है, use a set of data different from the training data to decide which is the best rule tree, right? So this is post pruning. So we have seen that to avoid the overfitting problem, we have pre pruning, where we don't go for splitting the t if it reaches if its value actually falling below that particular threshold value we have decided, right? Then post pruning, we actually first create or develop that decision tree, and after that only we try to we type different data to find out what will be the best prune tree. So these are the two processes for overfitting. और मैं ये बार बार इसलिए बोल रहा हूँ because sometimes I have seen that questions being asked from this, and it's a very common practical problem. ठीक है? So enhancement to basic decision tree induction. आप डिसीजन ट्री इंडक्शन में, ठीक है, आप कैसे इस प्रोसेस को एनहांस करोगे? So there are some measures for that. First, allow for continuous valued attributes. आपने कल देखा होगा जब हमने डिसीजन ट्री बनाया था तो उस कंटिन्यूअस वैल्यूड को हमने किस में कन्वर्ट किया था? कैन यू टेल मी? In the last class I told you that when we go for constructing the decision tree, then we have converted those values into some particular type of attributes. Can you tell me what is that? अरे लास्ट क्लास में बताया था, ये कैटेगोरिकल में हम कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, एक पार्टिकुलर इस वैल्यू ले लिया, उससे ज्यादा होगा तो यस, उससे ज्यादा होगा कम होगा तो नो। तो इस टाइप से आप कैटेगोरिकल में कन्वर्ट कर लेते हो। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि allow for continuous valued attributes. Okay, so we dynamically define new discrete valued attributes that partition the continuous attribute value into a discrete set of intervals. जो चीज हमने कल किया था, उस पार्टिकुलर वैल्यू डिटरमाइन कर लिया और उसके बेसिस पे हमने उसको डिवाइड किया। डिवाइड किया मतलब क्या हुआ? हमारे पास डिस्क्रीट सेट मिल गया। ठीक है, एक पार्टिकुलर इंटरवल में डिस्क्रीट सेट मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट, ये तो बड़ा प्रॉब्लम है। क्यों? बिकॉज दिस मिसिंग एट्रीब्यूट्स वैल्यूज विल लीड यू टू सम एनोमलीज। ओके, so we need to handle some missing attributes values. So assign the most common value of the attribute and assign probability to each of the possible values. अगर कुछ values missing है उस particular attribute में, आप कैसे क्या करोगे? आप of course उस missing value के बदले आप कुछ उसमें fit करोगे। तो क्या value fit करोगे? What value you are going to fit for that? The common value. Okay, common value for that particular attribute you will fit. And for that you can assign probability also. ये वाला particular value इतने times repeat हो रहा है। ठीक है, based on that you will find that common value and you will fit that. Next we have attribute constructions. So create new attributes based on existing ones that are sparsely represented. Right? ये sparse मतलब क्या है? What does it mean by sparse? I think I have already discussed in some earlier lectures. So sparse, can anybody tell me, अगर मेरा जो values है sparse है, मतलब सपोज sparsely represent कर रहे हैं हम,
तो इसका मतलब क्या है, क्या वो वैल्यू सही है हमारा एनालिसिस के लिए या गलत है, उसके ऊपर हम रिलाई गलत है नहीं सर। करते। वेरी गुड, ओके। तो इस टाइप का स्पार्स के लिए हम नया एट्रीब्यूट कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, क्योंकि स्पार्स रहेगा तो इधर से उधर कहीं पर भी हो सकते हैं। तो अगर ऐसा होगा तो हम क्या करेंगे, नया एट्रीब्यूट कंस्ट्रक्ट करेंगे, अदरवाइज हमें कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़ता, क्योंकि कोई कोई रिपीट भी हो सकता है, रेप्लिकेशन हो सकता है, फ्रेगमेंटेशन हो सकता है। So these are the some ways by which you can enhance the basic decision tree induction. ये हर एक एल्गोरिथम के लिए एप्लीकेबल है। हर एक एल्गोरिथम मीन्स यू ऑलरेडी गॉट दैट decision tree being classified on the basis of the type of the attributes goodness measure. Like you are selecting entropy or you are selecting Gini index. Based on that, you will have different decision tree. तो ये सारे चीज ये कार्ड के लिए भी एप्लीकेबल होगा ओके। तो ये सारे मतलब जितना भी डिसीजन ट्री एल्गोरिथम है सभी के लिए एप्लीकेबल है। These are just measures. Okay. Now यहाँ तक के मैं जो एग्जांपल्स दिया, ठीक है, मैं यहाँ पे जो एग्जांपल्स दे रहा था वो तो ऑब्वियसली स्मॉल डाटा सेट लेके कर रहा था, बल्कि ये आप बहुत मतलब आप कुछ भी डाटा सेट जैसे आईडीज डाटा सेट ले लो या कोई भी हमारा जो पॉपुलर डाटा सेट्स है उसके लिए यूज कर सकते हो। बट आप लार्ज डेटाबेस की बात कर रहे हैं। आप लार्ज डेटाबेस, कैन समबडी डिफाइन मी दैट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बिग डाटा? Have you heard the term big data? यस सर। How सर do जो you डाटा define that? आपका रैपिड सर जो डाटा आपका रैपिडली इंक्रीज हो सकता है, और सर मतलब बिग डाटा तब उन डाटा को बोलोगे सर जब उसका 5 वीज जो होता है सर उसको समराइज करता है सर। मतलब अगर वो 5 वीज के अंदर आता है तो वेलोसिटी, वेरासिटी और 3 थे सर। Very good. Okay, कोई बात नहीं. At least you tried. Very good. Very good. Okay, so हम कॉमन डाटा सेट्स, जैसे आपको पूछ लिया मैंने कॉमन डाटा सेट क्या है, तो आप जो नॉर्मल छोटे मोटे डाटा सेट आप क्रिएट करते हो, जैसे कि आपने पॉपुलेशन सर्वे के लिए क्रिएट किया, या सपोज आपके पास ऑलरेडी जो मशीन लर्निंग स्टैंडर्ड डाटा सेट्स हैं वो सब, ठीक है। बट कुछ ऐसा डाटा सेट जिसका वेलोसिटी, वेराइटी, जो ये सारे चीज क्या हो सकते हैं, वो टाइम अकॉर्डिंग एज पर द टाइम इट विल बी व्हाट इंक्रीजिंग, इसका वॉल्यूम बढ़ते जाएगा, ठीक है। इट इज नॉट स्टिक टू सम कांस्टेंट वैल्यू। तो उस टाइप के डाटा सेट को हम एक्चुअली बोलते हैं बिग डाटा सेट और लार्ज डाटाबेस, ठीक है। तब हम किस टाइप का डिसीजन ट्री यूज करेंगे? माय क्वेश्चन इज दैट इफ दिस इज द केस ऑफ लार्ज डेटाबेस, देन व्हाट टाइप ऑफ decision tree you will prefer? Have you got my question? ठीक है, instead of that our common data sets, if you have been provided a very large database, okay, large database, so that large very big data set, say, then what type of decision tree you will prefer? That is the question for today's class. To all of you, थोड़ा सा सर्च मारना, थोड़ा सा देखना, खुद एनालिसिस करना कि हम किस टाइप का डिसीजन ट्री यूज करेंगे, ठीक है। ओके, देन एक चीज है जो मैं यहाँ पे अभी नहीं पढ़ाऊंगा, बट मैं इसका एक लिंक शेयर कर दूंगा आप लोगों को। रेन फॉरेस्ट, ओके। फॉरेस्ट मतलब क्या समझते हो आप लोग? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फॉरेस्ट? अब मत बोल देना जंगल, हाँ, बल्कि कॉन्सेप्ट जो लिया गया है उसी जंगल से ही लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ हमारा कंप्यूटर साइंस में व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म फॉरेस्ट? कैन एनीबॉडी टेल मी? बहुत सारे हो आप लोग, मैथमेटिक्स इसमें पढ़ा था आप लोगों ने, ट्री पढ़ा था। ट्री पढ़ा तो मैंने यहाँ पे क्या पढ़ा है आप लोगों को? डिसीजन ट्री। इसी तरह आपने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में क्या पढ़ा था? फॉरेस्ट। हाँ, आपका डिस्क्रीट स्ट्रक्चर में फॉरेस्ट पढ़ा रहा था।
So how will you define forest? Can anybody tell me? Yes, please try. सबसे पहले मुझे बताओ, frankly you tell me, have you heard this term or not? Forest? हाँ? ग्राफ थ्योरी पढ़ा था कि नहीं, ये बता दो मुझे। Have you gone through the graph theory or not? I think मैं audible नहीं हूँ शायद। नो सर, ग्राफ थ्योरी नहीं पढ़ा। ग्राफ थ्योरी नहीं पढ़ा था, क्यों नहीं पढ़ा? This is very important thing. Anyway, graph और tree, I think you guys know. ठीक है, मैं एक कॉन्सेप्ट दे देता हूँ, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ आपको। ये जो जितना भी हम पढ़ रहे हैं ना, दिस इज मतलब जो डिसीजन ट्री और ये सब चीज, दिस इज अ पार्ट ऑफ आवर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, ओके, ग्राफ थ्योरी, जहाँ पे क्या था, वर्टाइसेस था, राइट, एजेस था। अब उस ग्राफ में क्या होता है, ग्राफ इज कंपोज ऑफ टू सेट्स, सेट ऑफ वर्टाइसेस एंड सेट ऑफ व्हाट, एजेस, v एंड e। बट उस ग्राफ में क्या होगा, अगर हम साइकिल कंसीडर नहीं कर रहे, देन वी विल हैव ट्री, राइट। यहाँ पे हम साइकिल कंसीडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद उस ट्री और ग्राफ में और क्या डिफरेंस आ सकता है, व्हाट विल बी द नेक्स्ट डिफरेंस दैट वी मे सी इन केस ऑफ ट्री एंड ग्राफ? यस, डेटा स्ट्रक्चर सुना था ना आप लोगों ने? आई होप यू हैव हर्ड अबाउट द डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, ये जो है हम साइकिल अब, तो ये सारे चीज एक्चुअली किस टाइप का डेटा स्ट्रक्चर में आते हैं? कैन यू टेल मी, इज दिस लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर? अरे बाइनरी ट्री सुना था आप लोगों ने? यस सर। ठीक है, आप आ गया, बाइनरी ट्री तो सुना है आप लोगों ने, ठीक है। बाइनरी ट्री क्या है? अपने आप में तो ये ट्री है ना, राइट। तो उसमें क्या था, यस सर। उस पार्टिकुलर नोड में कितने नंबर ऑफ साइल्स हम क्रिएट कर रहे हैं? टू साइल्स वी आर क्रिएटिंग। बट इस टाइप का कोई रेस्ट्रिक्शन हमारा ग्राफ में नहीं था, ओके। हमने ट्री को कुछ पार्टिकुलर टाइप्स में डिवाइड किया है एंड वी आर फॉलोइंग दैट पार्टिकुलर टाइप्स। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द बाइनरी ट्री, वी गो to restrict ourselves to only two sides, right? और ग्राफ में क्या है, रूट जो है, ठीक है, माने ये क्या है, यूनिक होगा या नहीं होगा, दिस देयर इज अ कंफ्यूजन। बट ट्री में जो रूट नोड है, दैट शुड बी यूनिक। आपने देखा होगा जब हमने कार्ट में, आईटी में, जब भी हम डिसीजन ट्री कंस्ट्रक्ट करते हैं, देन वी हैव वन node, one initial node from which the other child nodes been generated, right? So ये जो initial node है, हम इसको क्या बोलते हैं? root node बोलते हैं, right? But इस टाइप का कोई कॉन्सेप्ट ग्राफ के लिए नहीं है, ओके। ग्राफ में आप किसी को भी पकड़ के चल सकते हो, बट यहाँ पे हमने ट्री में इसको रेस्ट्रिक्ट किया है कि हाँ, ये यूनिक होना चाहिए। और नेक्स्ट जो मैंने आप लोगों को कहा था, सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस आप लोगों को क्या कहा था, साइकिल। साइकिल मतलब क्या है? घूम फिर के एक ही जगह पे आना है, राइट। तो ऐसा ग्राफ में हो सकता है, बट साइकिल ट्री में नहीं हो सकता, ठीक है। अब जब हम बहुत सारे ट्री को कंसीडर करेंगे तो वो फॉरेस्ट होगा,
I already told you jungle habi. Okay, habi किमान থাকে बहुत गॉस থাকে like that. एक जंगल में आपका बहुत सारे क्या है पेड़ हैं, तो बहुत सारे पेड़ हम इकट्ठा कंसीडर कर रहे हैं तो उसको हम फॉरेस्ट बोलते हैं, राइट? सिमिलरली यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे लाया, जब हम बहुत सारे ट्री कंसीडर किया तो उसको एक साथ में हम फॉरेस्ट बोलते हैं। मैं आप यहाँ CS की बात कर रहा हूँ, ठीक है? अब इस सारे फॉरेस्ट का हम क्या निकाल लेंगे, एक्यूरेसी निकाल लेंगे कि एक राइट वे से क्लासिफाई कर पा रहे हैं कि नहीं। सपोज हमारे पास 3 ट्री है, वी हैव 3 trees, T1, T2 and T3. Now we'll try to find out among this T1, T2, T3, whose accuracy is higher than others. And based on that, we'll select that tree which is showing us the higher accuracy. That is the concept behind this forest. Okay. So I think that's enough for this decision tree and this forest. Okay. If time, if you or if in any discussion session, I will assign some problem related to this decision tree. Okay. So next we'll come to the other part, that is the next part, that is cluster analysis. ठीक है, मैं नेक्स्ट पार्ट जो पढ़ाऊंगा आप लोगों को वो है क्लस्टर एनालिसिस, ठीक है? एंड दैट आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, एंड फॉर टुडे आई एम गोइंग टू टर्मिनेट दिस लेक्चर, एंड please attempt the question that I have asked today. Okay? Okay, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you.